students, I am Jayashree Miss. Now today I am going to start the force and pressure physics numericals, physics chapter number force and pressure. Now before doing the numericals, first of all you will do the formulas. Moment of force is equal to force multiplied by perpendicular distance. This is the formula. This other formula is pressure is equal to force upon area. These are the two formulas. Now move on to first numerical. The moment of the force, first one. Find the moment of force of 20 Newton about an axis of rotation at a distance of 0.5 meter from the force. So what is given here? Force is equal to 20 Newton is given, and a perpendicular distance is given is equal to kitna 0.5 meter is given. So you have to find the moment of the force. You have to find moment of the force, right? So here the formula. This is question mark. The moment of the force formula you know. Force multiplied by perpendicular distance. Force 20 Newton multiplied by 0.5 is equal to 10 Newton meter. So this is the first sum. Numerical. Moment of the force is equal to force multiplied by perpendicular distance. Perpendicular distance 0.5 and force is 20 Newton, 10 Newton meter. First sum. Now second. Now second sum. The moment of the force of 25 Newton. तो force कितना दिया हुआ है? 25 Newton is given force, and about the point is 2.5 Newton meter, and moment of the force is given. Moment of force is equal to 2.5 Newton meter is given. Find the perpendicular distance. Now you have to find the perpendicular distance. You have to find. तुमको पता है मोमेंट ऑफ द फोर्स का फॉर्मूला. तो अभी मोमेंट ऑफ द फोर्स कितना है? इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इज इक्वल मोमेंट ऑफ द फोर्स कितना दिया हुआ है? 2.5 एंड फोर्स 25 इनटू डिस्टेंस d. तो d इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 25. हाँ, अभी इधर एक पॉइंट है तो इसको नीचे हम लोग 0 डाल देंगे. तो इसमें 0 डालने में पॉइंट निकल जाएगा. तो दिस इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, राइट? तो 0.1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? 10 सेंटीमीटर. बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो अभी हम लोग 0.1 को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इट विल गिव 10 सेंटीमीटर, राइट? 25 Newton force, moment of the force is 2.5 Newton meter. You have to find the perpendicular distance. तो पहले फॉर्मूला लिखो. फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है? 2.5. फोर्स कितना है? 25 d. d इज इक्वल 2.5 अपॉन 25. अब इसका पॉइंट निकालने के लिए नीचे 0 डाल दो. 25 का 1/10 0.1 मीटर. मीटर को अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है. Now third sum. A spanner of length 10 centimeter is used to open the nut by applying the minimum force of 5.0 Newton. Calculate the moment of the force required. अभी इसमें स्पैनर ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर इज ओपन. तो अभी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर इज गिवन. 10 सेंटीमीटर. अभी हम लोग सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो किसको डिवाइड बाय 100 करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा. तो डिवाइड बाय 100 इज इक्वल 1/10 मीटर. अंडरस्टूड? नाउ फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स इज 5.0 न्यूटन इज गिवन.
तो अभी मोमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड करेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो इसमें 5 1 जा 5 2 जा 1/2 is 0.5 न्यूटन मीटर। इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो दिस इज थर्ड न्यूमेरिकल। नाउ फोर्थ। Wheel of diameter 2 inch can be 2 meters can be rotated about an axis passing through its center by the moment of the force equal to 2.0 Newton meter. What is the minimum force must be applied to on it? अभी हाँ, एक सर्कल है, इसका एक व्हील है। दिस इज द व्हील, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द डायमीटर। अभी इसमें क्या एक व्हील है, उसका डायमीटर कितना है 2 मीटर है। तो इसका जो जितना डायमीटर है कितना है 2 मीटर है, राइट। तो कैन बी रोटेटेड। तो रेडियस कितना हुआ इसका, रेडियस कितना हुआ ये 1 मीटर, राइट। हाँ, तो अभी मोमेंट ऑफ द फोर्स दिया हुआ ये दिया हुआ है। तो एक्सिस तो सेंटर बाय द मोमेंट ऑफ द फोर्स। अभी क्या हुआ, ये जो व्हील है, व्हील उसका 2 मीटर डायमीटर इज गिवन। तो अभी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस इधर से रोटेट हुआ, रोटेट। तो इसका जो डिस्टेंस है ये डायमीटर है, डायमीटर का आधा कितना आएगा रेडियस, राइट। तो पहले लिखो डायमीटर कितना है 2 मीटर, डायमीटर इज 2 मीटर, राइट। तो अभी इसका रेडियस कितना आएगा 2/2 1 मीटर आएगा रेडियस, इसका हाफ, राइट। तो अभी इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ 1 मीटर, राइट। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से रोटेट हुआ सेंटर से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल रेडियस, रेडियस कितना 1 मीटर। नाउ द मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ है, मोमेंट ऑफ द फोर्स इज 2.0 न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ द फोर्स। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, फोर्स। You have to find the force. So force is equal to force is equal to moment of the force upon perpendicular distance. तो moment of force कितना 2 upon perpendicular distance 1. तो this is the answer। कितना आएगा 2 न्यूटन, कितना आएगा 2 न्यूटन। It is the answer। पहले क्या होगा, डायमीटर इज गिवन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट गिवन। तो व्हील का डायग्राम ड्रॉ करो, डायमीटर 2 मीटर है, तो उसका हाफ रेडियस कितना है 1 मीटर, एंड 1 मीटर दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड देन मोमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल मोमेंट ऑफ फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/1 2 एंड अपॉन 1 2 न्यूटन। फोर्थ सम। नाउ फिफ्थ। A normal force of 200 Newton acts on an area of 0.02 meter square. Find the pressure in Pascal. You have to find the pressure in Pascal. So now force कितना दिया हुआ है 200 Newton is given. Area is given 0.02 meter square is given. You have to find the pressure in कितने यूनिट में Pascal. You have to find the pressure in Pascal. Now you will formula of the this one, pressure, force upon area 200 upon 0.02। अभी ये इधर डिनोमिनेटर पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, 2 नंबर है, तो ऊपर हम 2 जीरो ऐड करेंगे, तो 200 into 100 upon 2, इसका पॉइंट निकल गया, राइट। 2 ये कर 1, तो इसका आएगा 10,000। ये अपना आएगा न्यूटन, तो ये 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10,000 पास्कल,
सेम। तो प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया 200 अपॉन 0.02। अभी ये जो 0.02 निकालने के लिए हम लोग इसमें दो प्लेस है तो ऊपर 2 जीरो ऐड करेंगे, 100 करेंगे तो 100 में 2 पॉइंट निकल गया, 210,000 पास्कल। दिस इज द आंसर। फिफ्थ सम। नाउ 6। Find the thrust required to exert a pressure of 50,000 pascals on an area of 0.05 meters square. Thrust means what? Force, right? So you have to find the force, या तो thrust, both are equal. And what is given here? Pressure is 50,000 pascal is given. 50,000 pascal. And area is equal to 0.05 meter square is given. Now force का formula है, force is equal to pressure into area. Pressure is 50,000 into 0.05. तो इसका आंसर आएगा 5 5 25, इसके बाद 4 जीरो लगेंगे और 2 प्लेस के बाद डॉट आएगा तो 2500 न्यूटन। इट इज द आंसर 2500 न्यूटन। 6 7 सम। Find the area of a body which experiences a pressure of 50,000 pascal by the thrust of 100 Newton. So you have to here find the area. और क्या दिया हुआ है? Pressure 50,000 pascal is given. And thrust means force. Force कितना हुआ है? 100 Newton. Now तो force pressure is equal to force upon area. So you have to find area. The area is equal to force upon pressure. Force कितना हुआ है? 100 upon pressure is 50,000. तो ये आंसर आएगा 0 0 कट 0 0 कट। हाँ तो इसका 10 upon 5,000 है। तो अभी ये 5,000 है 10, तो इसका आएगा 10 अपॉन 1/5 का कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो अभी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हम लोग पहले क्या करेंगे? 100 अपॉन 50,000, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? इसका 10 अपॉन 5,000, एक जीरो इसका, एक जीरो काट करेंगे, 10 रहने दे देंगे और 5,000 रहेगा। बाद में हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, राइट? तो अभी ये जो 10 10 है उसका ऊपर का एक जो 2 उसका 2 है, 2 अपॉन 1/5 0.2, तो इसका 2 5/10 यानी क्या आएगा? 2 आएगा। इसका कटिंग करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 5 1 5 2 तो अभी ये 3 है, इसको डिनोमिनेटर में है तो हम न्यूमरेटर में लेंगे तो इसका -3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻³ 7 सम। नाउ 8 सम। Calculate the pressure in Pascal exerted by the force of 300 Newton acting normally on an area of 30 centimeter square. So you have to find the first of all pressure in Pascal. You have to find force कितना है? 300 Newton is given and acting on area. तो area is given in 30 centimeter square. अभी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम लोग इसको मीटर स्क्वायर में करना है कन्वर्ट। तो 30 को हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे, 00, तो आंसर आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 आएगा मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को अभी जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं 4 जीरो 10,000 से डिवाइड करना है। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया
फोर्स है 300 अपॉन 30 इंटू 10,000, तो ये अभी ये ऊपर है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10,000 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आएगा 30, 0 0 कट 3 3 कट 10, तो ये आएगा 1 लाख, कितना आएगा न्यूटन मीटर्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, या तो 10⁵ पास्कल पीए। 30 अपॉन 10,000, 3 इंटू 30 इंटू 10⁻, ये -4, कि 1 2 3 4 4 0 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा -4। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, 300 फोर्स कितना हुआ 300, और 30 अपॉन इसका एरिया की जगह क्या लेंगे 30 अपॉन 10,000 लिखेंगे हम लोग। तो अभी ये 30 अपॉन 10,000 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10,000 ऊपर आएगा, 30 नीचे आएगा, 0 0 कट और 3 3 30, 3 1 3 10 सा, और ये आएगा 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो 10⁵, कितना 0 1 2 3 4 5, या 10⁵ पास्कल। 8 नाउ 9, for how much thrust will be required to exert a pressure of 20,000 pascal on an area of 1 centimeter square। thrust एंड फोर्स तुमको फाइंड करना है, फोर्स और प्रेशर कितना है 20,000 पास्कल, एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कन्वर्ट किया हमने। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर है 20,000 इंटू एरिया है 10⁻⁴, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 न्यूटन आएगा आंसर। क्योंकि देख ये जो 1 2 4 0 है, 4 0 के सामने ये -4, तो ये 0 0 कट हो जाएंगे, देख कैसा हो जाएगा, ये देख 20,000 है, और 10⁻⁴ नीचे 10,000 हो जाएगा, 0 0 कट, आंसर करना है 2 न्यूटन, समझा। 9 सम, नाउ 10th, now 10th sum. The base of the container measures 15 centimeter and multiply by 20 centimeter, base given, from that we can find the area. If it is placed on the table top पे ऊपर रखा हो, तो what happens if the weight of the container is 60 Newton is weight, so what is the pressure? So first of all you have to find the area. तो अभी area of base कितना है, एरिया इज इक्वल 15 इंटू सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो 15 2 30 300, 300 अपॉन 10,000, ये सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर। नाउ फोर्स कितना हुआ, वेट ले फोर्स, वेट कितना हुआ, फोर्स कितना है 60 न्यूटन इज गिवन। So you have to find the pressure. Pressure is equal to force upon area. Force is 60 upon 300 upon 10,000. हम लोग अभी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 10,000 upon 300, 0 0 कट, 6 1 6 5 5 20 2,000 सा, तो आंसर आएगा 2,000 पास्कल, 2,000 पास्कल। ये जो नीचे जो 300 अपॉन 10,000 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10,000 अपॉन 300 बाद में कटिंग के बाद कितना आएगा 2,000 पास्कल इज द आंसर। 10 सम, नाउ 11 सम। Now 11 sum. Calculate the pressure
exerted on the surface of 0.5 meter square by the thrust 100 kgf. अभी kgf पे दिया हुआ है, तो देखो तुम लोग को प्रेशर फाइंड करना है और इसका exerted by एरिया कितना हुआ 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया इज गिवन एंड थ्रस्ट फोर्स कितना हुआ है 100 kgf किलोग्राम फोर्स. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स 100 अपॉन 0.5. अभी इसका पॉइंट निकल जाएगा ना तो ऑपोजिट में 1 जीरो ऐड हो जाएगा, तो 1000 अपॉन 5 तो कितना आएगा 200. तो 200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर kgf, सॉरी kgf पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. 11th सम, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. अभी इसका पॉइंट निकल जाएगा ना तो इसमें 1 जीरो ऑपोजिट में ऐड करने का, 1000 अपॉन 5 कटिंग. नेक्स्ट 12th sum. A boy weighing 60 kgf stands on a platform of dimensions 2.5 cm and 0.5. ये हम लोग एरिया फाइंड करेंगे उसमें. What is the pressure in Pascal? You have to find, right? तो first force thrust कितना है 60 kgf is thrust. तो यह हम लोग 60 kgf को हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 600 न्यूटन, राइट. बाद में एरिया फाइंड करेंगे. एरिया इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 सेंटीमीटर. तो इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10. इसका पॉइंट निकल जाएगा. तो आफ्टर दिस वन कटिंग के बाद 125 अपॉन 100, 125 upon 100. Now we will find the pressure. Pressure is equal to force upon area. Force कितना है 600 upon area है 125 upon 100. तो हम लोग उसका ये करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100 upon 125. Now we will cutting down करेंगे. 25 4s are 25 5s are 5 1s are 5 1s are 5 5 2s are 10, हाँ 120. तो आंसर आएगा yes. Now we forgotten this. अभी दिस इज इन द सेंटीमीटर, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टी डिवाइड बाय 10,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे. तो अभी ये जो 10,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ऊपर 10,000 आ जाएगा इधर, तो आंसर आएगा और 4 जीरो ऐड जाएंगे, तो ये आएगा इसका आंसर. तो ये अपॉन 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 4.8 इंटू 10⁶ पास्कल. 4.8. अभी हम लोग ना आई फॉरगॉटन दिस 2.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो डिवाइड बाय 10,000. तो अभी ये आंसर है, टोटल ये एरिया है. अभी क्या करेंगे हम लोग फोर्स अपॉन एरिया, तो अभी इसमें 600 इंटू 125 इंटू 10,000. अभी ये जो है ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये 125 नीचे आएगा. बाद में हम लोग कटिंग करेंगे तो ये आएगा 48 lakhs पास्कल. अभी हम लोग उसको कन्वर्ट करना है पॉइंट में, और 10:6 इधर पॉइंट आएगा, इधर पॉइंट आएगा तो क्या आएगा, इधर 10 ऐड करेंगे, दोनों जगह 10 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 6 1 2 3 4 5 6 0, 10:6
एंड 48/10, ये 48 इधर ऐसे आएगा 48/10 ये अलग से, और ये 10⁶, तो ये आएगा 4.8 इंटू 10⁶ पास्कल। क्या आएगा? पास्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ना, उसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10,000। Now 13 sum. Figure shows that the brick એટલે वो जो ईंट रहता है वो of weight 2 kgf and weight means क्या force 2 kgf, dimensions 20 centimeter and 10 centimeter and 5 centimeter placed in the 3 different position में रखी dimensions. Find the pressure exerted by the brick in each case. सबका अलग अलग प्रेशर फाइंड करना है। अभी फर्स्ट है, इसमें ब्रिक है, ये वाली ब्रिक हम लोग ड्रॉ करेंगे। अभी 5 सेंटीमीटर है, इधर 20 सेंटीमीटर है और इसका 10 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फर्स्ट इसमें नीचे जो बेस है वो 20 इंटू 10 ये वाला बेस, हम लोग उसका एरिया फाइंड करेंगे। जितना बेस जो बेस है उसका, अभी ये स्टैंडिंग है तो ये नहीं आएगा, बेस लेंथ इंटू ब्रेथ ये वाला। तो फर्स्ट वेट कितना है, F इज इक्वल टू 2 kgf एंड एरिया इज इक्वल टू 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर को हम लोग इसमें करेंगे मीटर स्क्वायर में, डिवाइड बाय 10,000, 0,000 कट, तो ये 2 1 जा 250 जा, तो 1/50 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी विल फाइंड द प्रेशर। प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है हम लोग को 2 और एरिया इज 1/50, राइट। तो अभी 1/50 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 इंटू 50, 2 इंटू 50, तो ये आएगा 100 kgf पर मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट एरिया है 100 kgf पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सेकेंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन में बेस ये 20 इंटू 10, तो इसका एरिया कितना है 20 इंटू 10। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, जो ब्रिक है वो स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग मीन्स ये ऐसे, अभी इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 है और ये 20 है, तो अभी इसमें बेस 5 और 10 आएगा, ये स्टैंडिंग वाला नहीं आएगा, राइट। तो अभी इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 10,000, तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 10,000 करेंगे। तो ये आएगा 0 कट, 5 1 जा 5 1 जा અને 5 200 जा, तो ये आएगा 1/200 मीटर स्क्वायर एरिया। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, तो अभी फोर्स कितना है 2 है और एरिया है 1/200, राइट। तो इसका आएगा 2 इंटू 200 इज इक्वल 400, 2 2 जा 4, तो 400 kgf
पर मीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका सेकेंड का। इसका बेस कितना है 5 और 10, तो 5 10 इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 10,000, कटिंग किया 1/200, तो ये एरिया मिला। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज गिवन 2 kgf इज गिवन 1/200। अभी ये जो 1/2 इसका ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा 200/1, तो 400 kgf पर मीटर स्क्वायर। ये 13 का सेकेंड पार्ट, 13 सम का। नाउ लास्ट, नाउ 14 इसका सेकेंड थर्ड पार्ट। हाँ, अभी इसमें ये पोजीशन में अभी इसमें बेस है ये 20, ये 5 और ये 10। तो अभी एरिया ऑफ द बेस कितना आएगा इधर? एरिया ऑफ बेस इज इक्वल 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/10,000, 0 0 0 कट जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। ये हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 2 kgf अपॉन 1/100, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 × 100, तो ये आएगा 200 kgf पर मीटर स्क्वायर। ये बेस ये 20 and 5, तो 20 into 5 एरिया, 25 is 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/10,000 और 0 0 कट 1/100 मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 2 kg, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 1/100। अभी 1/100 का रेसिप्रोकल आएगा तो 100/1 रेसिप्रोकल 200 kgf पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। So this is force and pressure numericals. Okay, chalo, bye students. And if you have any doubts, then you can ask me in the WhatsApp or anything.